friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to take the topic of active and passive voice. So let me introduce what is active voice and what is passive voice. So basically in our everyday conversation we just talk in active voice. In active voice the sentence is in such a way that the subject is shown as the doer of the action. Let us take an example. The maid cleaned the house. Here the subject is the maid. It is the subject, and what is the verb here? Verb is cleaned. Then house is object. This sentence is in active voice. Alright, here we can clearly see that the subject is doing some work on the object. So when the subject is shown as the doer of the verb, then the sentence is said to be in active voice. जब subject work करता हुआ दिखाई दे रहा है object के ऊपर, then the sentence is in active voice. Active voice में sentence है हमारा. अब जब इसको हम reciprocate कर लेंगे तो हमारा object will come at the first place. Then our sentence will become the house was cleaned by the maid. Here the doer of the action comes at the end and this sentence becomes passive. Here the sentence becomes passive. The object has come at the first place. So here it is shown that something is done on the subject. Some verb is done on the subject. ठीक है, यानी कुछ action हुआ है subject के ऊपर. Object comes in the first place and verb remains here. The house was cleaned by the maid. The maid is the subject. So you can see clearly that in active voice and in passive voice the difference is that the places gets interchanged. Object comes here at the subject's place and the subject goes at the object's place. Object की place पे subject चला जाता है. Further example we can take. The boy drank the milk. Here the boy is the subject, drank is the verb and milk is the object. This sentence is in active voice. Okay. So when we change it in the passive voice, then the subject will become the milk. The milk was drunk by the boy. The boy, which is our subject, comes at the end and the object comes at the first place. The verb drank changes to drunk. In passive voice, our verb changes to perfect tense. Alright. So, in passive voice, now you can just clear it out that जब active से passive voice में हम change करते हैं, then the object takes the place of the subject. Another terms we can say that जब active से passive voice में sentence जाता है तो हमारा emphasis किस पे हो जाता है? Object पे हो जाता है. Object जब first place पे आ गया मतलब कि हमारा सारा emphasis किस पे है? Object पे है. So passive voice is sometimes used to highlight the object. किसके ऊपर एक्शन हो रहा है ये हाईलाइट करने के लिए कभी कभी पैसिव वॉइस यूज करते हैं. बट इन आवर एवरीडे कॉन्वर्सेशन हमारे एक्सेप्टेबल क्या है? एक्टिव वॉइस में बात करते हैं. ऑलराइट, वी विल टेक फर्दर एग्जांपल्स सो दैट यू जस्ट क्लियर इट आउट. सो वी कैन टेक फर्दर एग्जांपल्स लाइक माया इज लुकिंग आफ्टर हर यंगर ब्रदर. इन दिस सेंटेंस माया इज सब्जेक्ट. व्हाट इज द वर्ब हियर? Looking after. It is the verb and the object is her younger brother.
यंगर ब्रदर इज ऑब्जेक्ट. माया क्या कर रही है? माया अपने छोटे भाई का ध्यान रख रही है. सो माया इज लुकिंग आफ्टर हर यंगर ब्रदर. दिस सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस. इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, देन आवर सेंटेंस विल बिकम यंगर ब्रदर was being is being looked after by Maya. Younger brother is being looked after by Maya. So here the pattern you must have understood कि जब active से passive में change करते हैं तो हमारा pattern क्या होता है? Object takes the first place. Object is given the priority. ठीक है? Our verb being looked after. This is the verb looked after, and the subject Maya will take the place of the object. Maya जो हमारी subject थी वो end में आ जाएगी. Next example देखेंगे. A speeding car knocked down an old woman. Here a speeding car, ये हमारा subject है. Knocked down यानी टक्कर हो गई. This is the verb. And old women. Old women is our object. So if we change this active voice into passive voice, तो हमारा sentence क्या बनेगा? An old woman was knocked down by a speeding car. So in this example also हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो आ गया सब्जेक्ट की प्लेस पे, यानी an old woman was knocked down by a speeding car. अगर ये सेम न्यूज में आएगा, अगर ये सेम बात न्यूज में आएगी तो क्या होगा? हाईलाइट विल बी गिवन ऑन दी ओल्ड वुमेन. ओल्ड वुमेन को हमें हाईलाइट करना रहेगा. ठीक है कि विक्टिम कौन बना? स्पीडिंग कार का विक्टिम कौन बना? द ओल्ड वुमेन हैज बिकम द विक्टिम. सो इन न्यूज द न्यूज विल बी रेड लाइक दिस. ये खबर ऐसे पढ़ी जाएगी दैट एन ओल्ड वुमेन वाज नॉक्ड डाउन. और जो हमारा ये आ गया था सब्जेक्ट, इट विल बी completely omitted. इसको completely रिमूव कर दिया जाएगा. ठीक है, तो हमारे न्यूज के फॉर्म में जब हमारी सेम बात रहेगी तो क्या बोला जाएगा? हमारा सारा एम्फेसिस क्या होगा? ओल्ड वुमेन पे, जो हमारे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही थी. नाउ द सेंटेंस विल बी एन ओल्ड वुमेन वाज नॉक्ड डाउन. यहीं तक ये सेंटेंस रहेगा हमारा. एंड दिस सेंटेंस इज इन पैसिव फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ दिस एग्जाम्पल आई हैव टेकन टू शो यू दैट समटाइम्स पैसिव वॉइस इज प्रेफर्ड. कभी कभी प्रेफर किया जाता है पैसिव वॉइस को जब हमें एम्फेसिस करना होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि एक्शन किसके ऊपर हुआ उस पर जब हमें फोकस करना होता है. देन पैसिव वॉइस इज यूज्ड एज इट इज यूज्ड इन न्यूज. जब न्यूज में किसी पे फोकस करना होता है तो हमारा जो ये वाला पार्ट है, सब्जेक्ट वाला पार्ट कंप्लीटली ओमिट हो जाता है. आई विल टेक मोर एग्जांपल्स. सो सम मोर एग्जांपल्स. लेट अस टेक समवन हैज स्टोलन माय पेन. यानी किसी ने मेरी पेन चुरा ली. हियर इफ दिस सेंटेंस, इफ वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म, ये हमारा एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस, इसको जब पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे देन द सेंटेंस विल बिकम माय पेन हैज बीन स्टोलन. ठीक है, बाय समवन लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है. बाय समवन, दिस नीड नॉट टू बी रिटन. इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है. आवर सेंटेंस स्टॉप्स हियर, एंड्स हियर ओनली. माय पेन हैज बीन स्टोलन. किसने चोरी की? दैट समवन इज नॉट नोन. मालूम ही नहीं किसने की. सो आवर सेंटेंस विल बी लाइक दिस, माय पेन हैज बीन स्टोलन. बस दिस सेंटेंस इज इन पैसिव फॉर्म. ठीक है, पेन हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट है. मुझे क्या बताना है? अपना एम्फेसिस हमारा क्या रहता है कि मेरी पेन क्या चोरी हो गई? पेन चोरी हो गई. तो जब हमें एम्फेसाइज करना होता है उस एक्शन पे जिसके ऊपर हो रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हमारा सेंटेंस क्या रहेगा? पैसिव फॉर्म में रहेगा और पैसिव फॉर्म में ही यूज किया जाएगा.
नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, द प्यून विल रिंग द बेल। हियर द बेल, जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो आवर सेंटेंस विल बिकम द बेल विल बी रंग बाय द प्यून। हियर ऑल्सो दिस सेंटेंस, जब हम इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे बाय द प्यून, हियर ऑल्सो कैन बी ओमिटेड, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि कौन रिंग करेगा बेल को, ये पहले से ही मालूम है हमें। इफ वी से द सेंटेंस लाइक दिस, द बेल विल बी रंग, अगर हमने इतना सेंटेंस बोला तो बाय द प्यून बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। वी नीड नॉट मेंशन दैट द बेल विल बी रंग बाय द प्यून, क्योंकि बाय द प्यून ऑलरेडी हमें मालूम है कि बेल कौन बजाएगा, ऑफ कोर्स प्यून विल रिंग द बेल। सो हियर ऑल्सो इन पैसिव वॉइस द सेंटेंस विल रिमेन टिल हियर ओनली, द बेल विल बी रंग। पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट पार्ट को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पे ये क्लियर आउट करते हैं, जब एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस होता है तो हमारा एम्फेसिस सब्जेक्ट पे होता है, द डूअर, द वन, द पर्सन हु इज डूइंग द वर्क, जो एक्शन कर रहा है उसके ऊपर फोकस होता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में वही सेम सेंटेंस चेंज हो जाता है तो हमारा प्रायोरिटी या हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ देख लिया एग्जांपल्स में कि एक्टिव वॉइस ही हम रेगुलरली यूज करते हैं, बट पैसिव वॉइस इज आल्सो यूज्ड समटाइम्स व्हेन वी हैव टू एम्फसाइज द एक्शन व्हिच इज डन अपॉन द ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट नीड टू बी हाईलाइटेड, जब हमें हाईलाइट करना होता है ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, देन पैसिव वॉइस इज प्रेफर्ड। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।